जाती है, छोटी छोटी बात भूल जाती है। 3-4 साल से ये प्रॉब्लम है। She recognizes me, she knows my name, she knows about my disease. Before partition, we migrated from Karachi. She remembers Karachi every other day, how neat the city was, how clean the city was, how we used to go on the seashore, and utters this verse every now and then, every day. कराची है मस्ताना, समुंदर का किनारा है, सदर से ट्राम चलती है इसके नाम पर। Everything she remembers. Her father was employed in railway at Hafsabad. She remembers everything about Hafsabad. Old things are fresh in her memory. But of the recent time, she forgets. In the past, she was very active, very active. She used to take part in seminars, used to deliver lectures on religious lectures. But now she forgets everything. Can't say why she has developed this problem in old age. जो सबसे पहली स्टेज होती है वो बहुत ही माइल्ड होती है, जिसमें जो मरीज़ का मेन सिम्टम होता है वो है मेमोरी लॉस, और जो बिहेवियरल सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। और ये वो स्टेज होती है जिसमें मरीज़ को हल्की फुल्की ट्रेनिंग से मरीज़ अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, अपनी दिनचर्या आराम से गुजार सकता है। We in the family always try to keep her happy, and most of the time she remains calm, speaks very little, but listens to everybody. It's almost 15 years when my mother started showing signs of dementia, Alzheimer's type, and we thought that it was depression. And when she was diagnosed with Alzheimer's disease about more than a decade ago, I personally thought that my grief is the biggest. I am all alone in this universe, fighting with this disease and fighting with the mood behaviors of my mother. After my mother passed away and I started this society and started intermingling with the people and the caregivers who had Alzheimer's disease patients in their houses, and the way they were fighting with it. Today I can say that my grief was negligible. But yes, I was not aware. I'm trying to create awareness. I was alone. I don't let my caregivers be alone. We pray to God for her speedy recovery. Only God can help us. What is alarming to me is that I am told there is no complete cure of this disease. The family members are the one who are caring the patient. They are like in our society. If the patient has Alzheimer's, his spouse or his children, son or daughter-in-law, they will look after the patient. So they have to be very well aware of the problems associated with Alzheimer's disease. तो ये है कि अब तो I help her in kitchen work. Now with my failing health for the last 3 months or so, my daughters are coming turn by turn here. They are doing the work. Most of the other household work is done by maid servant. ऋषि मुनि और योगी सारे
But she says she can do everything. She is optimistic always. She doesn't feel pessimistic. Whenever she fell ill or confronted any trouble, she was always happy. But can't say this is the end of life. She will certainly recoup. We have faith in the ability of the doctors and the Almighty. कितनी उम्र में हुई थी शादी आपकी? 27। ये देखो, याद आया आपको? हैं? सही है। इनके अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। कभी ये बिल्कुल ठीक बात करते हैं, कभी नहीं बात करते हैं। अपना कमरा रोज सुबह भूले होते हैं। मैं कहाँ सोया था? ऊपर था, मैं नीचे कैसे आ गया? ठीक है। अब मैंने बाथरूम कौन से में जाना है? और कई बार इतने वो है, सेंसिटिव इतने हैं कि जैसे रात को इनको 2 बजे मुझे कहते हैं मुझे बाथरूम जाना है। अब मैं लेके गई, इनको बड़ी परेशानी हो गई। अगले दिन ये सारा दिन इसी बात में परेशान रहे कि मेरे को रात को कहीं फिर जाना ना पड़े। कभी बिल्कुल ठीक होते हैं, कभी रात को उठ के अपनी मदर को बहुत याद करते हैं, अपनी मदर को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। जब ये भूल जाते हैं तो ये मेरे को अपनी मदर बुलाते हैं, चाची। अपनी मदर को चाची बोलते हैं, मुझे बोलते हैं चाची है, या मेरे को अपनी बहन बोलते हैं तोशी या चाची बुलाएंगे। कभी बड़ी अच्छी बड़ी अक्लमंद बातें करते हैं। इनको पता लग जाए कि कोई घर में आने वाला है, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। पेस्ट्रियाँ मंगा, कुछ खाने मंगा, और जब नहीं देना है तो मेरे पीछे पड़ गए कि तूने मेरे सारे पैसे खर्च कर दिए। ये मुझसे रोज़ पूछते हैं तो कितने बजे वापस आएगी? मैं बोलती हूँ मैं 2:30 बजे आऊँगी। तो ये 2:30 बजे की इंतज़ार करते रहते हैं कि भाई आने वाली होगी। तो थोड़ा लेट हो गई तो उसको बोलते हैं टेलीफोन कर, वो आई कि नहीं आई। जब मैं आई तो वो आ गई है, डॉक्टर आ गई है। बोलते डॉक्टर आई है ना, कुसम नहीं आई है। वो मुझे कंफ्यूज करते हैं कि डॉक्टर आ गया। फिर बोलते हैं वो दूसरी कुसम कहाँ है? उनको शायद वो पुराने वाली मेरी वो याद आती है। कुसुम कहाँ है? मैं ही तो कुसुम हूँ। नहीं, वो दूसरी कुसुम। मैं बोली मैं ही कुसुम हूँ। तो ही गेट कंफ्यूज। पर जब ठीक होते हैं मुझे पता है ठीक है। जब ये मुझे कुसुम बुलाते हैं तो मुझे पता है कि ये ठीक है। जब ये इनको मैं कहीं बाहर लेके जाऊँ तो अंदर नहीं आते। तो ये है कि मेरे को पड़ोसियों को बुलाना पड़ता है कि आप आओ और इनको बताओ कि आपका घर है। बोलते मेरा घर नहीं है। दूसरी स्टेज वो आती है जिसमें कि मेमोरी सिम्टम्स के अलावा बिहेवियरल सिम्टम्स मेन होते हैं। ये वो स्टेज होती है जिसमें मरीज़ को अपनी बीमारी के बारे में इंसाइट नहीं हो सकती। इसलिए इस स्टेज में फैमिली सपोर्ट बहुत अहम रोल प्ले करता है। और इस दौरान फैमिली मेम्बर्स ने फैमिली सपोर्ट प्लस सेफ एनवायरनमेंट, ये 2 चीज़ों का मेन रोल होता है। सेफ़ एनवायरनमेंट से मेरा मतलब ये है जो घर का जो माहौल बना है, जो घर का जो लेआउट है, वो इतना प्लेजेंट बनाया जाए कि मरीज़ आराम से वहाँ पर घूम फिर सके। लेआउट को आप ऐसा बनाएं कि वो गिर ना पाए, और एक डेली रूटीन को फॉलो करें, और स्ट्रिक्ट वही रूटीन को फॉलो करें, क्योंकि अगर आप रूटीन से थोड़ा भी हटेंगे तो मरीज़ का कोऑपरेशन टोटली ख़त्म हो जाएगा और वो इरिटेट होने लगेगा और उसके बिहेवियरल सिम्टम्स और वर्स हो जाएंगे। पीछे ये बिल्कुल ठीक थे। अपने इनके फ्रेंड आए, उनके साथ ना ताश खेली, आप मानोगे? बिल्कुल उसके पहले बिल्कुल थे कि मुंह में रोटी भी नहीं डालनी, हम ही मुंह में गिराई डाल दी, इन्होंने खा ली। अगर नहीं तो खाना भी नहीं खाया, मांगा भी नहीं, कुछ भी नहीं। अपने कमरे में बैठे हुए बोलते हैं मैं रेलवे स्टेशन बैठा हूँ। वो कुल्ली हैं, वो ख़राब लोग हैं। They even don't know where they are sitting. This is totally disoriented to time, to the place and person, what time of the day it is, where they are sitting, whether it's a doctor's chambers or they are in a hospital. They can't tell you which floor they are in. Hallucinations can be there. It can be either visual hallucinations or they can hear things also.
It's not only visual, auditory. They hear things that somebody is calling, then they react to it. Or it could be tactile. Some things are crawling in the body. So various kinds of hallucinations can occur. कई दफ़ा कोई चीज़ रखते, जैसे कोई पेपर है या कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ है तो भूल जाते, फिर ढूंढना शुरू कर दी। खैर चीज़ मिल जाती थी, मैं वैसे हम करते इतना कोई परवाह नहीं कि भाई को थोड़ा सा हो जाता है। ऐसे ही एक दिन तो हम लोगों को आदत थी कि माई आती थी काम करने, तो हम लोग जो खाना खाते तो बर्तन धो के रख देते रात को। ये रसोई में जाए बर्तन धो के फिर विम लगा के साफ भी करते हैं। आपने कहा भाई माई किस लिए लगाई हुई है? ऐसे एक करते एक दिन गिर गए, ऐसे गिरे कि इनके पैर ऐसे उल्टे और हम तो डर गए। ये पता ही नहीं था कि अल्जाइमर्स भी कोई डिजीज़ होता है। नाम सुना था अल्जाइमर्स क्या होता है, पर क्या होता है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, हमें कुछ नहीं पता था। कुछ तो कंफ्यूज से रहने लगे थे डैडी। रात को उठते थे तो लाइट्स, पंखे की जगह लाइट का स्विच ऑन कर देते थे, जिसको ऑन करना है उसको ऑफ कर देते थे। बाथरूम जाते थे तो कपड़े जो हैं उल्टे सीधे पहन लेते थे। जोर से बताओ ना, मैंने नहीं सुना। विद्या रानी, मैं आपकी कौन हूँ? कुछ नहीं हूँ। अच्छा, तो आपका क्या नाम है? और दूसरा नाम? और आपकी उम्र कितनी है? 40 साल। कोई बच्चे याद नहीं है मेरे, कौन से बच्चे हैं, सामने आ जाए तो भी नहीं पता कौन है। अब ये बच्चे ऊपर रहते हैं तो भी सामने आ जाए तो हाँ ये सुरेश है, ये रानी है, क्या लगते हैं? कुछ नहीं। मैं कौन हूँ? तू, तेरा नाम विद्या रानी है। मैं क्या लगती हूँ आपके? कुछ नहीं तो पहले तो जब मैं कोई पूछती मैं आपकी क्या लगती हूँ, नहीं मैं कहती थी आप मेरे बिल्कुल ध्यान रखती है, मुझे ज़रा भी नहीं प्यार से बात करते, ऐसे हर वक्त बने रहते हो। कहते नहीं तू तो मेरी जान है। मैंने कहा अच्छा। तो कह रहे ऐसे धीरे, तब तक तो होश था, अब दिन पर दिन अब तो बिल्कुल ही उनको कोई पता नहीं। सुला दो तो सो जाएंगे, उठा दो तो उठ जाएंगे। मरीज अपने सूझबूझ खो बैठता है, उसे कुछ भी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता, वो अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं पहचानता और धीरे धीरे वो बिस्तर पकड़ लेता है। यूरिन और स्टूल भी वो बिस्तर पर करता है। ये वो स्टेज होती है जिसमें हमें पेशेंट के बेसिकली नरिशमेंट का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज, बेड साइड फिजियोथेरेपी, और जितना हम उसे कंफर्ट से कंफर्ट लाइफ दे सकें उस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। इनका फिर पेशाब भी पीछे निकलने लग गया, जहाँ खड़े होते वहीं पेशाब करते, खाना भी ना खाएं तो हम इतनी मुश्किल से इनको खाना खिलाए। ये बच्चे भी आ गए थे, शुक्र है ये आ गए थे, नहीं तो हमारे पास का तो था ही नहीं संभालना। ऐसे चलते चलते कई साल ही ऐसे हो गए, 9 साल हो गए अब तक। अब फिर 2 साल पहले तो ये गिरने लग गए तो मेरे से संभलते नहीं थे। मैंने कहा अब तो बहुत मुश्किल हो गया, अब कुछ नहीं जाता, अब कुछ नहीं। पहले तो फिर भी कोई पूछे खाना खाया नहीं खाया, नाश्ता खाया नहीं खाया, खा के भूल जाते। और रात को वही कहते खाना तो दिया नहीं, अब नहीं खाना नहीं खाऊंगा तो नींद भी नहीं आएगी, नींद नहीं आए, नींद भी नहीं आती, मौत भी नहीं आती। खाना नहीं देते, तुम खाना नहीं देते। हमने कहा खाया तो है, नहीं कुछ नहीं दिया मेरे को। हमने कहा ख़त्म हो गया साहब, नहीं कोई ख़त्म हो गया, सब पड़ा रसोई में, खाना दे दो, भोजन दे दो, भोजन दे दो, ऐसे कहेंगे भोजन दे दो। फिर बीच में पता नहीं क्या क्या दोहे बोलते हैं, तो क्या उस टाइम बोलते हैं कि उनको भी कुछ नहीं पता और हम सोचते हैं अभी शायद हमारी बात समझ रहे हैं, पर वो हमारी बात नहीं समझते। कहेंगे चुप करो तो अच्छा चुप करो, शुरू हो जाते हैं। वही जब थक हार के इनका आवाज़ निकलनी गले से कम हो जाती और फिर सो जाते हैं।
फिर सोते तो हम फिर उनको सुबह ये उठते, और सुबह जब उठते तो पूरा बिस्तर गीला, पूरी रजाई गिल्ली, पूरे कपड़े गिले। Carer is exposed to the patient 24 hours. He looking after. He's seeing him right from day one to deteriorating to a everyday deterioration he sees. So what happens is they also undergo a lot of stress because any person whose father or mother who has Alzheimer's disease, a stage comes when they are fail to recognize them. So even the children, they don't fail to recognize. So that's very traumatizing for them. So they undergo, we call caregiver stress. बहुत तकलीफ है, उनको भी तकलीफ बहुत है और हम भी, पर हमारी तकलीफ क्या है, हम तो ऊपर का कर रहे हैं ना, असली तकलीफ तो वो भोग रहे हैं जो बता नहीं पाते। थोड़ा बता सकते हैं तो हमें भी थोड़ा तसल्ली रहती है कि भी हाँ इनको कुछ हो रहा है, बता ही नहीं सकते वो। कई दफा सिर पे हाथ मारने लगते हैं, कभी ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, तो मैं देखती रहती हूँ मैं क्या करूँ, इनका सिर दबा दिया, कुछ कर दिया, क्यों मेरे सिर पे मार रही है, क्यों मेरे सिर पे कर रही है। बहुत दिक्कत है, अब क्या करें, भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि अब तो सच्ची हम इनके लिए मुक्ति मांगते हैं। जिनके घर में एल्जाइमर पेशेंट होता है, जो उनके केयर गिवर्स हैं, वो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। तो वहाँ जाकर अगर कोई वॉलंटियर, एज अ वॉलंटियर वहाँ जाकर जब उनसे बात करो, उनकी बात सुनो, तो उनका स्ट्रेस जो है थोड़ा कम हो जाता है। जैसे कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जहाँ पर मैं काफ़ी जाती हूँ और वो ऐसे लगता है जैसे वो मेरा ही परिवार है। उनसे बातचीत करके, उनकी बात सुन के। Live in a nuclear family. If you have parents at home, the son or daughter, they are working. Nobody can look after their parents, so they can't balance because it's a full-time job. So there is a very much need of a daycare center where the elderly patients suffering from Alzheimer's disease can be picked up and taken to a daycare center where they have a structured program. Our next mission is to start an adult daycare center where we bring in the patients of Alzheimer's disease in stage 1 and 2. When they come here at 8 o'clock in the morning, their activities of daily living should be taken care of, and then they should be involved in brain stimulating activities after the daily prayer session, taking into consideration their capabilities, their limitations, and their education level. And later in the evening we can have a joint playful activity, and by 4:35 we can start dropping them back home.